हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन चैप्टर से AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद सॉल्यूशन से उनका मिलान करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed towards a line perpendicular to the plane of rotation, the line making an angle of 45 degree to the plane of rotation, the radius, the tangent to the orbit. Second question है, two persons mass is 50 kg and 65 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of the mass of the system shifts by, ये चार ऑप्शन दिए हैं, A, B, C and D. Question number 3. ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2 and F3 represent three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. Total torque about O is 0. Then the magnitude of F3 is, चार ऑप्शन A, B, C and D. Question number 4. A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is 2 meter and its moment of inertia about axis is 200 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is, four options हैं A, B, C and D. Fifth question है, the moment of inertia of uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through, चार ऑप्शन A, B, C and D. ये फिगर दी है. Question number 6. Three masses are placed on x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at 40 centimeter and 400 gram at x is equal to 70 centimeter. The distance of center of the mass from origin is, चार ऑप्शन A, B, C and D. अब वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए. इनका वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When a mass is rotating in a plane about a axis, fixed point, its angular momentum is directed towards, ये एक फिक्स सेंटर है, इसके अलोंग ये मान लिया ए है, इसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है. इसकी रेडियस है आर. किसी टाइम इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल टू इस वी एंड मास इज इक्वल टू एम. तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं. पहला है ए लाइन परपेंडिकुलर, जो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड line perpendicular to the plane of rotation, the line making an angle 45 degree to the plane of the rotation, the radius, the tangent to the orbit. इसका लीनियर मोमेंटम इस इंस्टेंट पर, मतलब ये इंस्टेंट यहाँ पे B पर है, तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv. तो लीनियर मोमेंटम
जो टेंजेंशियल है इसकी एट प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L इजिकल टू R क्रॉस P। जो पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ रोटेशन। इनकी जब मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 persons of 50 kg, 55 kg and 65 kg respectively are at opposite ends of the boat. The length of the boat is 3 meter, 100 kg. The 55 kg man walks up to 65 kg man and sits behind him. The boat is in still water. The center of the mass of the system shifts 3 meter, 2.3 meter, 0 meter, D 0.75 मीटर। मान लिया एक बोट है, इसका मास इसके सेंटर पे मान सकते हैं 100 kg और इसकी लेंथ है 3 मीटर। ये 55 kg, 65 kg दूसरे एंड पे ए बी, यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पर। तो इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लिया सपोज सेंटर ऑफ मास इज एट CC। अब इसकी पोजीशन बदल गई है। जो मैन है वो दोनों आदमी एक साथ आ गए हैं, दोनों में 55 kg एंड 65 kg एंड ये 100 kg। इस पे जो बोट पे नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। Force is applied on the system, hence there will be no shifting in its center of mass। कोई फोर्स नहीं लगी है इसलिए इसमें सेंटर ऑफ मास में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल with O as its center, F1 F3 represents 3 forces acting along the side ABC and DAC respectively. Total torque about O is 0, then magnitude F3 is। दिस इज द फिगर। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, O इज द सेंटर। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका जो
60 डिग्री के होंगे ये सभी एंगल। जो मीडियन होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन का जो क्रॉस पॉइंट होता है वो इसका सेंटर होता है ट्रायंगल का। ये ए बी सी, ये ओ इज द सेंटर पॉइंट। अब इसमें हम देखें जो ए डी मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस विल बी इक्वल एंड दिस विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली अगर ये ई है, एफ है, तो ये 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। जो सेंटर पॉइंट है वो इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि ए ओ रेशो ओ डी इज इक्वल टू 2:1। इसी तरह से बी ओ रेशो ओ ई इज इक्वल टू 2:1। और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं दैट आर इक्वल, इन इक्विलेटरल triangles medians are equal। जब इक्वल हैं तो ये इसका पार्ट है, 1/3 पार्ट ओ डी है ए डी का, 1/3 पार्ट ओ एफ है और 1/3 पार्ट ही ओ ई है। तो इट मीन्स कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ये सब परपेंडिकुलर भी हैं इन लाइंस के। ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी। लेट ये मान लिया ए के इक्वल है। अब जो हमारा ट्रायंगल है, जो फोर्सेस लगी हैं, ए ओ ए बी सी, ये F1 है, ये F2 है इस डायरेक्शन में, दिस इज F3, ये O है। O की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से A है, इससे भी A है और इससे भी A है, दिस इज O। अब मोमेंट अबाउट दिस इज O। Moment about O, moment of force is about O। F1 यहाँ से देखेंगे तो F1 का एंटी क्लॉकवाइज होगा, F2 एंटी क्लॉकवाइज होगा और F3 क्लॉकवाइज होगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू ए पॉजिटिव प्लस F2 इंटू ए और F3 इंटू ए। जो O के अलोंग मोमेंट दिया है दैट इज 0, ए कॉमन F1 प्लस F2 प्लस माइनस F3 इज इक्वल टू 0,
या F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू 0, तो F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। दिस इज द करेक्ट आंसर। मिलान करते हैं तो ये फर्स्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is equal to 2 meter and its moment of inertia about the axis is 2 kg per meter square, 2 kg into meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge of the at the speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is pi second, 3 pi by 2 second, 2 pi second and pi by 2 second. ये प्लेटफॉर्म है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अलोंग ये वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ कर लें। ये ए ओ बी एक वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये प्लेटफॉर्म टर्न करता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट ए ओ बी इज गिवन 200 kg पर मीटर स्क्वायर पर इंटू मीटर स्क्वायर। इनिशियली उसके बाद एक आदमी इस पे 50 kg का कोई मैन है, वो यहाँ पे इस पे 50 kg मैन है, इसके किनारे पे खड़ा है, खड़ा हो जाता है। तो इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम of the system is 0. अब let angular velocity of platform with respect to earth is omega when man begins to walk। जब आदमी मैन चलने लगता है तो वो जो है उसकी ओमेगा है विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। अब दिस इज द प्लेटफॉर्म। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मैन है, यहाँ से वो मूव करना शुरू कर देता है। इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट प्रेजेंट है। ये रेडियस है 2 मीटर। मास ऑफ मैन इज इक्वल टू 50 kg। एंगुलर मोमेंटम
ऑफ मैन, इसको अगर दिस इज v वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, वो होगी r क्रॉस mv वेक्टर या m इंटू r क्रॉस v वेक्टर। r एंड v आर एट 90 डिग्री, तो ये होगा एम वी आर 50 इंटू 1 इंटू 2 100, जो मैन का जो है 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म when man starts walking, वो होगा आई, और ओमेगा हमने एज्यूम किया है आई ओमेगा। आई की वैल्यू है 200 ओमेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 is equal to momentum of the man plus momentum of platform, 100 plus 200 omega. No external torque, hence angular momentum is conserved. तो L2 is equal to L1, L2 है 100 plus 200 ओमेगा, L1 है 0, या 200 ओमेगा इज इक्वल टू -100, ओमेगा इज इक्वल टू -100 बाई 200 माइनस 0.5 माइनस 0.5 रेडियन पर सेकेंड। माइनस सिंबल शोज जो प्लेटफॉर्म है वो मैन के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये रोटेट करना विपरीत डायरेक्शन में चलेगा। तो जब ये बी पॉइंट, मान लिया बी पॉइंट पे इनिशियली यहाँ कोई हमने निशान लगाया हुआ है बी का, बी घूम के किसी तरह से मैन कहीं किसी भी स्तंभ पे यहाँ पे आ जाता है बी, और यहाँ पे जब मैन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये पूरा टर्न पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है उसको मैन कवर करेगा और ये रोटेट होगा। मान लिया 30 सेकंड में ये बी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाता है और मैन भी यहाँ आ जाता है। मान लिया मैन को हम ऐसे शो करें, मैन आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से मैन चल, तो 30 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल टू 1 इंटू टी मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पेरिफेरी।
जो रोटेटिंग पेरिफेरी है उसका होगा ओमेगा r इंटू टी. Omega is 0.5 into 2 into t. This is also t meter. T plus t, the total distance is equal to t plus t, ये होगा circumference. टू t is equal to 2 pi r, 2 pi into 2, t is equal to 2 pi into 2 by 2, 2 pi second. 2 pi second में वो पूरा राउंड ले लेगा. तो हमारा आंसर है सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू बी, सी, डी एंड ई. 4 ऑप्शन दिए हैं. ये सेंटर पे जो, तो अगर हम इसको आई ए से डिनोट करें और इसका डिस्क का मास, टोटल मास ऑफ डिस्क, लेट मास ऑफ डिस्क is equal to m, radius is equal to r. तो जो सेंटर से जाता है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं. आई ए विल बी, डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई डी होगा ये, अगर ये इस डिस्टेंस को हम r1 माने, ए सी, इफ ए डी इज इक्वल टू r1, AC is equal to R2 and AB ये R है. This is R2. Theorem of parallel axis. I B होगा आई ए प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ डी की वैल्यू है आर, आई ए प्लस एम आर स्क्वायर. आई सी आई ए प्लस एम आर 2 का स्क्वायर, और आई डी इज इक्वल टू आई ए प्लस एम आर 1 का स्क्वायर. ये 4, इसको हम एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, यह है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर 2 का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर 1 का स्क्वायर. इन चारों को हम कंपैरिजन करें, आई ए, आई बी एंड आई सी एंड आई डी. मैक्सिमम इज आई बी. तो बी के अलोंग जो है सबसे ज़्यादा होगा. दिस इज बी इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 है, three masses are placed on the axis 300 gram at origin, 500 gram at axis 40 centimeter, 400 gram at axis 70 centimeter. The distance of center of the mass from the origin 40 centimeter, 45 centimeter, 50 centimeter, 30 centimeter. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है. तो 300 ग्राम इज एट
ओरिजिन 400 ग्राम, ये 500 ग्राम एज 40 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे मान लिया 500 ग्राम 40 सेंटीमीटर x की वैल्यू है, और 400 ग्राम एट x 70 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर 400 ग्राम। ये इसके लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ टोटल मास एट सेंट्रोइड या टोटल मास m इज इक्वल टू 300 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 400 ग्राम 1200 ग्राम। डिस्टेंस ऑफ center of mass from origin is equal to capital X। तो mx is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3। m1 300 के ग्राम इंटू 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 700 400 इंटू 70, m 1200 इंटू x, 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70। तो x इज इक्वल टू 500 इंटू 440 प्लस 400 इंटू 7, 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 बाई 1200। ऊपर से 100 हमने कॉमन ले लिया, ये होगा 5 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 70 डिवाइड बाय 1200। ये 2 जीरो इससे क्रॉस हो जाएंगे, ये बचेगा 5 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 70 डिवाइड बाय 12, 200 प्लस 280 12, 480 डिवाइड बाय 12 x इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो x का कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।